Hello students, how are you? Students, you have to take care yourself, and whenever you go outside you have to use mask and sanitizer, and when you come back you have to wash your hands properly with soap. And to increase your immune system you have to take care, you have to do meditation and exercise every day. And you can see the weather is changing day by day, so you have to increase your immune system. For this, take the diet properly and do the things that is healthy for you. Okay children, today we will study the computer for the class 7th and the chapter 1. Chapter 1 name is number system. Number system, why we use number system? Number system we are using to understand the computer language. Computer language everyone knows, it works on the binaries. Binaries are the 0 and 1. Then how the 0 and 1 computer understand, we have studied here. Now you can see the first number system is decimal number system. It consists of digits 0 to 9. That means decimal number system, it is having the digits that are total in 10 and starting from the 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These countings are total in 10 and it consists of the digit 0 to 9. These 10 digits can be used in any combination of to form a number. These 10 digits 0 to 9, by the help of these digits we can make any number. The base of decimal number system is 10. The base of decimal number system is 10 because the digits that we are using in this system are 10. This is a positional value system. Positional value system means the digits where they are located, they have the position on. That's why it is called positional value system. The value of each digit is based on its position in a number. It is also called the positional value notation. ये आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 0 से लेकर के 9 तक काउंटिंग्स आती हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी काउंटिंग आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम में आती हैं. टोटल ये आपकी 10 होती हैं, इसीलिए आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो भी आपका 10 होता है. ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है. पोजिशनल मतलब जहाँ पर जिसकी वैल्यू होती है, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, जो इनका सीक्वेंस होता है ये अपनी ही लोकेशन पर, अपनी पोजीशन पर रहते हैं. तो ये आपका इसलिए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, पोजिशनल वैल्यू नोटेशन कहलाता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. देयर इज एन एग्जाम्पल. फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 231. okay, now you can see in the solution number is writing here 132. see, in the question the sequence is 231, but we are writing in the solution number 132. That means always the reading of any number, computer start from the last to first. We always study from first to last, but computer study from last to first. मतलब जो आपका लास्ट डिजिट होगा कंप्यूटर उसे सबसे पहले रीड करता है, वो उसकी सबसे पहला नंबर होता है. इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 132. 231 की जगह लिखा है 132. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. पावर ऑफ बेस. पावर ऑफ बेस मीन्स इफ़ वी सी द 1 का आपका लोकेशन क्या है, यदि पीछे से देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे वो आता है, ठीक है. और यहाँ पे लिखा है 1 इंटू 10. 1 तो आपका वो हो ही गया नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे 10 क्यों लिखा है? 10 का मतलब क्या होता है, हम किस सिस्टम में बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम. अच्छा, फिर आपका इसके पावर में 0 लिखा है. 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आना है ना, तो 10 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है कि वो इक्वल्स टू 1. तो 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड 1 इंटू 1 आपका आंसर 1 आएगा. तो पावर ऑफ बेस क्या हो गया आपका 1. आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं 1 इंटू 1 और उसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1. दैट मीन्स जो आपका क्वेश्चन में 1 दे रखा है उसकी पोजीशन वैल्यू क्या हुई 1. ऐसे ही आप देखते हैं हमारा पावर ऑफ बेस
फॉर द 3 के लिए हमारा क्या है, 1 के बाद आपका क्या आता है, सेकेंड लोकेशन आती है। अब आप कहेंगे कि 1 2 3 क्यों नहीं यूज़ किया, 0 से क्यों स्टार्ट किया, तो 0 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग कहाँ से थी, 0 से 9 तक थी ना, तो आपका हम 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर 1 2 3 1 बाय 1 हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के साथ में 10 की पावर 1, 10 इसका बेस हुआ, 1 इसकी पावर हो गई। कैलकुलेशन में देखो 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 ही होता है, तो 3 इंटू 10 आपका आ गया 30। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट वन इज 2 के साथ में 10 टू द पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2 आपका क्या होता है, 100 होता है, तो 2 इंटू 100 it comes 200. That means the total value of given question is 200 plus 30 plus 1, it is 231. Okay, you can also see in the explanation 1 is at 1's position. Okay, therefore it is multiplied by 10 raised to the power 0. 3 is at 10th position, therefore it is multiplied by 10 and raised to the power 1. 2 is at 100th position, therefore it is multiplied by 10 raised to the power 2. Okay स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? हम एक और एग्जाम्पल के देखते हैं। देखिए, अगेन देयर इज अ नंबर इज 3 4 5. we read 3 4 5, but computer how it will read 5 4 3. you can see in the solution number 5 4 3. अब 5 कंप्यूटर के लिए सबसे पहला नंबर पर आया है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 10 टू पावर 0, तो 10 की पावर 0 इट विल गिव 1. तो आपकी कैलकुलेशन में देखें 5 इंटू 1 वैल्यू विल बी 1. फॉर द 4 इंटू 10 टू द पावर 1, calculation 4 into 10 value will come 40. Number for the 3 it comes last for the computer, then it will be 3 into 10 to the power 2, and the calculation 3 into 100 and the value will be 300, and the total value will be 300 plus 40 plus 5, that will comes 345. always remember kid students कि कंप्यूटर हमेशा लास्ट से फर्स्ट मूव करता है, तो हम हमेशा लास्ट वैल्यू लिखेंगे और फिर उसके बाद में फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, नाउ टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ योर बाइनरी नंबर सिस्टम. आई हैव टोल्ड अर्लियर एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन द बाइनरी नंबर consist of zeros and 1. it use only two number, 0 and 1. the base of binary number is 2 because the number that it use only 2 and 0 and 1. that's why the base of binary number system is 2. okay, the positional value of digit of a binary number correspond to powers of 2. अब यहाँ पे जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा था, वहाँ पे हमने बेस क्या लिया था, 10 लिया था, क्योंकि वहाँ पे डिजिट आपकी 10 आ रही थी. ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में आपकी डिजिट कितने आ रही हैं, 0 और 1, सिर्फ 2 आ रही हैं. तो वहाँ पे जब हम 10 यूज़ कर रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या हुआ आपका, हम इसमें 2 ही चीज़ें यूज़ करते हैं, 0 और 1, और यहाँ पर हम उनकी बेस भी 2 ही रखते हैं. टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन सी द बाइनरी डिजिट 1 मीन्स ऑन एंड द बाइनरी 0 मीन्स ऑफ. इफ somewhere writing 1, that means it is on state, and when it is writing 0, that means it is off state. मतलब on का मतलब कुछ फंक्शन हो रहा है, 0 का मतलब फंक्शन नहीं हुआ. आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं. you can see in the example binary number you know only 2 digit will come, either 0 or either 1. that's why it is writing here binary number 1 1 0 1, and it reads from the last to first ना. तो you can see last 1 के नीचे क्या लिखा है, 2 की पावर 0. 2 की पावर 0 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 क्या है, हमारा बाइनरी का बेस है. ये सिर्फ 2 ही नंबर यूज़ करता है, तो ये आपका बाइनरी का बेस हुआ, तो आपका ये 2 यूज़ करेगा. उसके बाद अब इसके पावर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी 0 से ही होनी है. फिर देखिए आप धीरे धीरे 1 2 3, तो
तो यहाँ पे बेस तो हमेशा बाइनरी के लिए 2 ही रहेगा, बस आपकी जो पावर्स की है काउंटिंग वो आपकी लास्ट टू फर्स्ट इंक्रीज होती चली जाएगी 1 बाय 1। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में डिनोशन करते हैं। दैट्स द स्टाइल टू डिनोट द नंबर्स इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, this is the octal number system. Octal number system, it consists of 8 digits that are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. octal number system में हमारी 8 डिजिट होती हैं जो 0 से लेकर के 7 तक होती हैं। क्योंकि ये 0 से लेकर 7 तक होती है, काउंटिंग में टोटल 8 होती हैं, दैट्स वाई इट्स बेस इज़ 8। octal system having the base 8. The octal number system is also a positional number system। जैसे हमने आपको डेसिमल में बताया था, ये भी आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। इट एक्सटेंसिवली यूज इन एन अर्ली मेन फ्रेम्स कंप्यूटर सिस्टम। जो आपके बहुत पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हुए थे, हम ऑक्टल नंबर सिस्टम वहाँ पर यूज़ करते थे। ठीक है, नाउ टू द नेक्स्ट सिस्टम इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, हेक्सा प्लस डेसिमल। हेक्सा मतलब आपके यहाँ पर क्या होगा 6, हेक्सा 6 के लिए हमने यहाँ यूज़ किया है, डेसिमल आपका 10। तो टोटल काउंटिंग हमारे पास में कितनी हो गई? टोटल हमारे पास हो गई 16। हेक्साडेसिमल, इट कंसिस्ट ऑफ 16 थिंग्स इन विच द 10 digit are 0 to 9 and the 6 letters we are using here A, B, C, D, E and F. Okay, the total in the counting they are 16. That's why the base of hexadecimal number system is 16. Okay, the letters A, B, C, D, E, F represents the counting 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपकी 2 चीज़ों से बना होता है। आपकी काउंटिंग जो आपकी डेसिमल में होती हैं वो आपकी 0 से 9 पूरा यूज़ होता है, और ये 6 लेटर भी यूज़ करता है जो आपकी A, B, C, D, E, F ये होते हैं। ठीक है, आप इन्हें यदि डेसिमल में देखना चाहें तो A, B, C, D, E, F आपकी 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये भी डिनोट करते हैं। क्योंकि ये काउंटिंग में पूरे 16 होते हैं तो इनका बेस भी आपका 16 होता है, और ज़्यादातर हम इन्हें वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन ऑटोमेटिक होता है। दे यूज़फुल वेयर द फंक्शन शुड बी ऑटोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल योर वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन क्या होता है, आप उसमें टाइमर सेट कर देते हैं और वो अपने आप ही वर्क करती रहती है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाती है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपकी ऐसी ही जगह यूज़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड द माइक्रो कंट्रोलर। दे आर द ऑटोमेटिक थिंग्स, दे डू द थिंग्स व्हेन यू सेट वन टाइम, दे आर वर्किंग for the particular time that you have set. Okay, now next slide, there is an example. Find the value of number 231. Okay, now you can see in the solution number is writing here 132. See, in the question the sequence is 231, but we are writing in the solution number 132. That means always the reading of any number, computer start from the last to first. We always study from first to last, but computer study from last to first. मतलब जो आपका लास्ट डिजिट होगा कंप्यूटर उसे सबसे पहले रीड करता है, वो उसकी सबसे पहला नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 132। 231 की जगह लिखा है 132। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, पावर ऑफ बेस। पावर ऑफ बेस मीन्स इफ वी सी द 1 का आपका लोकेशन क्या है यदि पीछे से देखा जाए तो। टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम। आई हैव टोल्ड अर्लियर एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन द बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ zeros and 1. It use only 2 number, 0 and 1. The base of binary number is 2 because the number that it use only 2 and 0 and 1. That's why the base of binary number system is 2. Okay, the positional value of digit of a binary number correspond to powers of 2.
अब यहाँ पे जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा था वहाँ पे हमने बेस क्या लिया था, 10 लिया था, क्योंकि वहाँ पे डिजिट आपकी 10 आ रही थी। ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में आपकी डिजिट कितने आ रही हैं, 0 और 1, सिर्फ 2 आ रही हैं। तो वहाँ पे जब हम 10 यूज़ कर रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या हुआ आपका, हम इसमें 2 ही चीज़ें यूज़ करते हैं, 0 और 1, और यहाँ पर हम उनकी बेस भी 2 ही रखते हैं। See the example. Question is, convert the decimal number 33 base 10 into the binary number. Then what you have to do? Write 33 in the center of the division, and left side you have to write down the 2. Okay, you can see when you divide 33 by 2, it is odd number, that means remainder will be 1. You can see in the next line remainder 1 is coming. And how many times 33 will be divided by the 2? 16 time. तो यहाँ पे 16 आया. Then again you have to write down 2 left side of the 16 and divide it by 2. By dividing 16, 16 is a even number, then 8 will come and remainder will be 0. You can see in the third line. In the fourth line again you are dividing 2 by 8, it will come 4 because 8 is even number and remainder will be 0. When you divide 4 by 2, it is again even number, then answer will be 2 and remainder will be 0. When 2 you divided by the 2, it is again even number, then result will be 1 and answer in remainder will be 0. And then last, if you are again dividing, the 1 will come again right side, and then after you, when you write the binary numbers, you have to start from the last two first. You can see in the answer we are writing here 1 0 0 0 0 1. That is the binary equivalent of the given number decimal 33. Okay, जब भी आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे 33 लिखना है, उसके राइट साइड में आपको 2 लिखना है। 33 आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए मैंने बताया था कि आपका 1 रिमाइंडर आएगा। तो नेक्स्ट सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 1 आ गया और 33 आपने जब डिवाइड किया तो वो आपका 16 टाइम गया। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में देखिए 16 आपका जो है वो आपका इवन नंबर है, तो जब भी आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करने के बाद 8 आएगा और 16 क्योंकि इवन नंबर है तो आपका रिमाइंडर 0 रहेगा। फिर आपका जो थर्ड लाइन है उसमें 8 आ रहा है तो 2 से उसे फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 आपका इवन नंबर है तो आंसर 4 आएगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। जब 4 में डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा और ये इवन नंबर है तो आपका ये रिमाइंडर 0 रहेगा। फिर 2 में डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 2 हमारा अगेन इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0। फिर लास्ट में जो है 1 बच रहा है उसमें 2 का तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो 1 को आपको एज इट इज़ ट्रांसफ़र करना है रिमाइंडर में क्योंकि ये बच रहा है
और फिर नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी आपकी बाइनरीज आई हैं वो आपको इकट्ठा एक साथ में कलेक्टिव लिख देनी है। तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ आपके क्वेश्चन में जो डेसिमल नंबर दिया था। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन सी द बाइनरी डिजिट 1 मीन्स ऑन एंड द बाइनरी 0 मीन्स ऑफ. If somewhere writing 1, that means it is on state, and when it is writing 0, that means it's off state. मतलब on का मतलब कुछ फंक्शन हो रहा है, 0 का मतलब फंक्शन नहीं हुआ. आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं. You can see in the example binary number you know only two digit will come, either 0 or either 1. That's why it is writing here binary number 1 1 0 1, and it reads from the last to first ना. तो you can see last 1 के नीचे क्या लिखा है, 2 की पावर 0. 2 की पावर 0 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 क्या है हमारा बाइनरी का बेस है. ये सिर्फ 2 ही नंबर यूज़ करता है, तो ये आपका बाइनरी का बेस हुआ, तो आपका ये 2 यूज़ करेगा. उसके बाद अब इसके पावर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी 0 से ही होनी है. फिर देखिए आप धीरे धीरे 1 2 3, तो यहाँ पे बेस तो हमेशा बाइनरी के लिए 2 ही रहेगा. बस आपकी जो पावर्स की है काउंटिंग, वो आपकी लास्ट टू फर्स्ट इंक्रीज होती चली जाएगी 1 बाय 1. तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में डिनोशन करते हैं. That's the style to denote the numbers in the binary number system. Okay, students. Now you can see the first number system is decimal number system. It consists of digits 0 to 9. That means decimal number system, it is having the digits that are total in 10 and starting from the 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These countings are total in 10 and it consists of the digit 0 to 9. These 10 digits can be used in any combination of to form a number. These 10 digits 0 to 9, by the help of these digits we can make any number. The base of decimal number system is 10. The base of decimal number system is 10 because the digits that we are using in this system are 10. This is a positional value system. Positional value system means the digits where they are located, they have the position on. That's why it is called positional value system. The value of each digit is based on its position in a number. It is also called the positional value notation.
ये आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें 0 से लेकर के 9 तक काउंटिंग्स आती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी काउंटिंग आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम में आती हैं। टोटल ये आपकी 10 होती हैं, इसीलिए आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो भी आपका 10 होता है। ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है। पोजिशनल मतलब जहाँ पर जिसकी वैल्यू होती है 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, जो इनका सीक्वेंस होता है ये अपनी ही लोकेशन पर अपनी पोजीशन पर रहते हैं, तो ये आपका इसलिए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम पोजिशनल वैल्यू नोटेशन कहलाता है। नाउ मूव to the next system is your hexadecimal number system. Hexadecimal, it consists of two words, hexa plus decimal. hexa मतलब आपके यहाँ पर क्या होगा 6, हेक्सा 6 के लिए हमने यहाँ यूज़ किया है, डेसिमल आपका 10। तो टोटल काउंटिंग हमारे पास में कितनी हो गई? टोटल हमारे पास हो गई 16। हेक्साडेसिमल इट कंसिस्ट ऑफ 16 थिंग्स इन विच the 10 digit are 0 to 9 and the 6 letters we are using here A, B, C, D, E and F. Okay, the total in the counting they are 16. That's why the base of hexadecimal number system is 16. Okay, the letters A, B, C, D, E, F represents the counting 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Okay, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपकी दो चीज़ों से बना होता है। आपकी काउंटिंग जो आपकी डेसिमल में होती हैं वो आपकी 0 से 9 पूरा यूज़ होता है, और ये 6 लेटर भी यूज़ करता है जो आपकी A, B, C, D, E, F ये होते हैं। ठीक है, आप इन्हें यदि डेसिमल में देखना चाहें तो A, B, C, D, E, F आपकी 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये भी डिनोट करते हैं। क्योंकि ये काउंटिंग में पूरे 16 होते हैं तो इनका बेस भी आपका 16 होता है। और ज़्यादातर हमें आएगा सी इन द एग्जाम्पल कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101 इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, देन हाउ वी कैन कन्वर्ट। सी 1101 ये आपका नंबर गिवन है, कंप्यूटर इसे कैसे रीड करेगा? ये लास्ट टू फर्स्ट रीड करेगा 1011। ओके ओके, यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट से देखना शुरू करें आप, लास्ट में देखें आप तो जो आपका 1 है, 1 के साथ में इसकी पोजीशन वैल्यू क्या आ रही है? 2 की पावर 0। यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि बाइनरी का बेस आपका 2 होता है। 0 क्यों लिखा है? क्योंकि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट करता है रीड करना? लास्ट से फर्स्ट। तो आपका 0 सबसे पहले लिखा, फिर उससे नेक्स्ट वाले में देखो आपको जो बाइनरी नंबर क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले 1 था, 1 का किया, फिर आपको 0 गिवन है, 0 की जो लोकेशन है वो आपकी नेक्स्ट लोकेशन है, तो आपकी पावर्स क्या होंगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी। फर्स्ट वाले के लिए आपकी 0 पावर आई, नेक्स्ट वाले के लिए क्या आएगी? 1 पावर आएगी। फिर उससे नेक्स्ट आपका देखें तो क्वेश्चन में 1 0 के बाद 1 दिया हुआ है ना, पीछे से आपको रीड करना है। ठीक है, आगे से नहीं पीछे से रीड करना है। तो 1 0 1, अब आपका थर्ड नंबर पे 1 आ रहा है तो आपने 1 लिखा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। आप पीछे से एक एक पावर इंक्रीज़ करते जाएं 2 की, तो आपका ये ऐसे दिखेगा। फिर आपका लास्ट नंबर है जो हमने लास्ट टू फर्स्ट रीड किया है, दैट इज़ 1, और इसके साथ में 2 की पावर 3 आ रहा है जो आपकी पावर से एक करके आपको इंक्रीज़ करनी है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? आप नेक्स्ट लाइन में देखें तो 1 तो एज इट इज़ आया, और 2 की पावर 3 क्या होती है? 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका 8 आ गया। 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 4।
आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आपका 1 होता है, 2 की पावर 1 आपका 2 होता है, लेकिन जब 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा। फिर लास्ट जो आपका लिखा हुआ है 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 आपका आएगा 1। अब जो थर्ड लाइन है सॉल्यूशन की, वहाँ पे आप देख सकते हैं 8 + 4 + 0 + 1, इन सभी को आपको ऐड कर लेना है तो आपका 13 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो गिवन बाइनरी नंबर था 1101 वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, और डेसिमल नंबर्स क्या आया इसमें 13 विद द बेस 10। ठीक है, okay students, see this next example to convert the binary number 1101110 into the decimal number। ये आप तो give see the solution first line, it is writing here what you see start from the last to first। okay, solution line आप लास्ट से फर्स्ट की तरफ देखना शुरू करें। लास्ट आपका जो बाय नंबर है वो आपका 0 है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 2 की पावर आपकी 0 हो जाएगी। 2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि बाइनरी में है ना ये, तो इसका बेस आपका बाइनरी का 2 होता है, तो हमने 2 यहाँ पर लिया है, तो बेस आपका 2 और इसके साथ में पावर 0। जैसे ही आप एक नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपका 0 के बाद में लास्ट टू फर्स्ट देखें तो 1 है, और इसके साथ 2 की पावर क्या होगी एक इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आप थर्ड ब्रैकेट देखें लास्ट टू फर्स्ट, उसमें आपका क्या दिया हुआ है 1 आपका एक नंबर है, और उसके साथ में 2 की पावर 2 है, जो एक लास्ट वाले से एक इंक्रीमेंट फिर हो गई। ऐसे ही 2 की पावर फिर से इंक्रीज़ हो रही है। आपके फोर्थ ब्रैकेट में देखें लास्ट टू फर्स्ट 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका 0 आ रहा है, 0 के साथ में आपका 2 की पावर इंक्रीज़ होगी 2 की पावर 4, फिर आपका 1 2 की पावर 5, नेक्स्ट इज 1 इंटू विथ 2 की पावर 6। लास्ट टू फर्स्ट आपकी पावर्स इंक्रीज़ होंगी, और जो बाइनरी नंबर है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 1 बाय 1 करके आएंगी। अब आप देख सकते हो 2 की पावर 6 आपकी क्या होती है 64 आती है। दैट मीन्स आपको 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, ऐसे 6 टाइम आपको लिखना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। ऐसे ही 2 नेक्स्ट वाले में 2 की पावर 5 है तो आपको 5 टाइम्स उसे लिख के मल्टीप्लाई करना है तो 32 आएगा। नेक्स्ट आपका 2 की पावर 4 है, जो आप इसको करेंगे तो आपका क्या आएगा 16, 2 की पावर 3 तो आपका 8 आएगा, 2 की पावर 2 आपका 4 आएगा, और 2 की पावर 1 आपका 2 आएगा। लास्ट में यहाँ पे 2 की पावर 0 है, जो आपका 1 आना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपकी बुक्स में यदि आप देखेंगे, बुक्स में आप देखें पेज नंबर 12 पर, वहाँ पर भी ये आपका मिसप्रिंट है, इसलिए मैंने आपको यहीं पर भी बता रही हूँ कि 2 की पावर 0 आपका 0 नहीं 1 आएगा। आप अपनी बुक में भी करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे इसलिए करेक्ट नहीं किया, मैंने इसलिए ही रखा है सेम कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको इस चीज़ पे ध्यान रहे कि यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखें 64 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, 32 1 से मल्टीप्लाई हुआ 32, 16 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा, तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। जब 8 को 1 से करोगे तो 8, 4 को 1 से 4, 2 को 1 से 2, लास्ट वाला आपका 0 इंटू 1 होगा, तो 0 की वजह से वो 1 भी आपका 0 हो जाएगा, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। लास्ट में इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर दें, नंबर क्या आया आपका 110। दैट मीन्स द गिवन बाइनरी नंबर इज़ कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर इज़ 110। तो इस तरीके से आप बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट स्लाइड, that is your computer arithmetic. Computer arithmetic means there are the 4 operations. First is addition, next one is subtraction, multiplication, and then division. There are the 4 arithmetics that we have to do, that we have to learn in this chapter. Okay, now move to the next slide. 1 plus 1, what it will give 0 with carry 1, that is 1 plus 1, you can see here 1 plus 1 it will give 0,
with next line you can see carry 1 is there. Okay, now अब आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पर आपके देखिए ध्यान से देखना, दो नंबर्स हैं 0 + 1 जो आपको गिवन थे, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 0 + 1 तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन 0 + 1 के साथ में आपको ये कैरी भी ऐड करनी है, तो 0 + 1 1 और 1 के साथ में आपने कैरी ऐड किया तो 1 + 1 आपका क्या आएगा, अगेन इट विल गिव 0 एंड कैरी विल बी द 1। तो आपका कैरी 1 हुआ। अब आपको फिर क्या ऐड करना है, गिवन नंबर आपके क्या है, 1 0 है, 1 + 0 करोगे तो आपका 1 आएगा, लेकिन हमारी कैरी भी 1 है तो 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। कैरी आपकी दिख रही है, पीछे से आई है। यहाँ पे अब जो नंबर्स हैं वो आपको 1 + 1 दिया हुआ है, तो 1 + 1 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 आपका क्या देता है, 0 देता है। तो 0 आप याद रखिए, 1 + 1 की जो कैरी होगी वो तो आप आगे भेज दीजिए, लेकिन अभी यहाँ की भी तो कैरी ऐड करनी है ना हमें, 1 + 1 की भी तो कैरी हमारे पास में है। तो 1 + 1 ऐड किया, 0 आया, उसकी कैरी तो हमने आगे भेज दी, लेकिन जो 1 + 1 का जो हमारे पास में एडिशन रिजल्ट 0 आया उसे हम किसके साथ मिक्स करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, कैरी 1 के साथ ऐड करेंगे। तो 0 + 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ध्यान रखना, जब भी 3 1 एक साथ आपको ऐड करने को मिले तो आंसर भी 1 और उसकी नेक्स्ट कैरी भी 1। फिर आपका जो नेक्स्ट केस है वो भी आपका ऐसा ही है, आपके 3 1 आपको एक साथ मिल रहे हैं, 2 तो आपको गिवन है और एक आपकी कैरी, तो अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 विद कैरी 1। अब कैरी 1 जो एक्स्ट्रा जनरेट हुई है वो आपको एज इट इज़ नीचे लिख देनी है। तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन परफॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हम बाइनरी एडिशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, सी इन द एग्जाम्पल, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101 into decimal number system, then how we can convert, सी 1101 ये आपका नंबर गिवन है, कंप्यूटर इसे कैसे रीड करेगा, ये लास्ट टू फर्स्ट रीड करेगा 1011। ओके ओके, यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ सॉल्यूशन, लास्ट से देखना शुरू करें आप, लास्ट में देखें आप, तो जो आपका 1 है, 1 के साथ में इसकी पोजीशन वैल्यू क्या आ रही है, 2 की पावर 0। यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि बाइनरी का बेस आपका 2 होता है। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट करता है रीड करना, लास्ट से फर्स्ट, तो आपका 0 सबसे पहले लिखा। फिर उससे नेक्स्ट वाले में देखो, आपको जो बाइनरी नंबर क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले 1 था, 1 का किया, फिर आपको 0 गिवन है, 0 की जो लोकेशन है वो आपकी नेक्स्ट लोकेशन है, तो आपकी पावर्स क्या होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी। फर्स्ट वाले के लिए आपकी 0 पावर आई, नेक्स्ट वाले के लिए क्या आएगी, 1 पावर आएगी। फिर उससे नेक्स्ट आपका देखें तो क्वेश्चन में 1 0 के बाद 1 दिया हुआ है ना, पीछे से आपको रीड करना है, ठीक है, आगे से नहीं पीछे से रीड करना है। तो 1 0 1, अब आपका थर्ड नंबर पे 1 आ रहा है, तो आपने 1 लिखा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, आप पीछे से एक एक पावर इंक्रीज़ करते जाएं 2 की, तो आपका ये ऐसे दिखेगा। फिर आपका लास्ट नंबर है जो हमने लास्ट टू फर्स्ट रीड किया है, दैट इज़ 1, और इसके साथ में 2 की पावर 3 आ रहा है, जो आपकी पावर से एक करके आपको इंक्रीज़ करनी है। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? आप नेक्स्ट लाइन में देखें तो 1 तो एज इट इज़ आया, और 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ओके स्टूडेंट्स, सी दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 110110 into the decimal number। ये आप तो गिव सी द सॉल्यूशन फर्स्ट लाइन, इट इज़ राइटिंग हेयर व्हाट, you see start from the last to first। ओके, सॉल्यूशन लाइन आप लास्ट से फर्स्ट की तरफ देखना शुरू करें। लास्ट आपका जो बाय नंबर है वो आपका 0 है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट 2 की पावर आपकी 0 हो जाएगी। 2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि बाइनरी में है ना ये, तो इसका बेस आपका बाइनरी का 2 होता है, तो हमने 2 यहाँ पर लिया है, तो बेस आपका 2 और इसके साथ में पावर 0। जैसे ही आप एक नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपका 0 के बाद में लास्ट टू फर्स्ट देखें तो 1 है, और इसके साथ 2 की पावर क्या होगी, एक इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आप थर्ड ब्रैकेट देखें, लास्ट टू फर्स्ट, उसमें आपका क्या दिया हुआ है, 1 आपका एक नंबर है, और उसके साथ में 2 की पावर
2 है जो एक लास्ट वाले से एक इंक्रीमेंट पर हो गई। ऐसे ही 2 की पावर फिर से इंक्रीज़ हो रही है। आपके फोर्थ ब्रैकेट में देखिए लास्ट टू फर्स्ट 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 0 आ रहा है, 0 के साथ में आपका 2 की पावर इंक्रीज़ होगी 2 की पावर 4, फिर आपका 1 2 की पावर 5, नेक्स्ट इज 1 इंटू विथ 2 की पावर 6। लास्ट टू फर्स्ट आपकी पावर्स इंक्रीज होंगी और जो बाइनरी नंबर है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 1 बाय 1 कर। Okay friends, see the next example for the binary subtraction. Subtract 1010 from 1100. What you have to do here, 1100 में से 1010 को subtract करना है. You can see in the solution 1100 writing here and downside 1010 is writing. From last to first we have to start. Last case first is 0 minus 0, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा. नेक्स्ट केस इज़ 0 माइनस 1. आई वॉज टोल्ड कि आपका जब भी 0 में से 1 जाएगा तो 0 में से 1 जाएगा तो एक आपको बोरो सेट करनी पड़ेगी. तो आप अगले वाले से एक बोरो लोगे, तो एक बोरो लिया तो जो 0 था वो आपका क्या बन जाएगा, अब बोरो लेने के बाद में 10 बन जाएगा. ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा. आपको ये ध्यान रखना है कि 10 कंबाइंड कहलाता क्या है. यदि हम इनका बाइनरी इक्विवेलेंट दिखें तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट जो 10 है वो 2 का होता है और 2 में से यदि 1 गया तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन हेयर, राइटिंग 0 माइनस 1. 0 में से जब भी 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उसके लिए आपको बोरो लेना पड़ेगा. वेन एवर यू टेक बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट इट विल गिव 1 एंड 0 तो आपके पास में ही था, तो 1 0 दोनों मिलके आपका 2 बनाते हैं. और जब 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आपका नीचे आपको आंसर में मिलेगा. तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 0 में से 1 आपने किया तो आपका आंसर 1 आ गया. और नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेप, तो जहाँ पे आपका 1 जहाँ से आपने बोरो किया है वो तो आपका 1 तो हट ही जाएगा क्योंकि आप बोरो कर चुके हैं, तो वहाँ पर 0 रह जाएगा. तो 0 में से 0 गया तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना. आप के लिए मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ. लास्ट से फर्स्ट आप देखें, सेकेंड केस आपको 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो एक आप बोरो करोगे. जैसे ही आप बोरो करते हो तो ये जो 0 है वो आपका 10 बन जाएगा. 10 को यदि हम डेसिमल में देखें तो वो आपका 2 जो डिजिट होता है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है. तो 2 में से तो 1 हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो आपका 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका आंसर 1 हो जाएगा. और फिर आप नेक्स्ट केस को देखें जहाँ से आपने 1 को बोरो लिया है वो तो आपने बोरो में दे दिया, तो वहाँ तो अब 1 बचा नहीं, वो तो 0 हो गया. तो 0 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 विल कम. नाउ नेक्स्ट इज 1 minus 1, 1 minus 1, everyone knows 0 will come. So this question is solved and subtraction is done. तो रिमेंबर आपको रखना है कि जब भी 0 में से 1 जाए तो आपको एक बोरो लेना है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट one more example here. It is showing subtraction 1010 from 1111. In the solution line write down 1111 and second line 1010. When you start subtraction from last to first it will give 1 minus 0. 1 में से 0 जा रहा है, 1 will come. 1 minus 1, 1 में से 1 तो 0 आपका आ जाएगा. 1 minus 0 again it will give 1. 1 minus 1 it will give 0. तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हुआ. Students, now you can see the following again. There are the 3 more examples for addition and subtraction. You can see, you can practice these examples for remembering. First you can see we have to add 1010 with 11. First case you can see 0 plus 1, 1 will come. 1 plus 1, 1 plus 1 जब हम ऐड करते हैं तो आपका एडिशन रिजल्ट 0 आता है, कैरी 1 आता है. तो आप देख सकते हैं कैरी 1 लगा और रिजल्ट आपका 0 आया. फिर 0 प्लस कैरी दिस 1 तो आपका 1 आएगा और लास्ट में जो 1 है वो एज इट इज़ 1 आ जाएगा. तो ये आपका एडिशन हुआ.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगेन इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन. You have to add 1 0 0 0 1 with 1 1 1 0 1. Write down this in the solution and start addition from the last to first. 1 plus 1, it will give 0 with carry 1. Now second next one is 0 plus 0 with carry 1. So 0 plus 0 0 and carry 1 means 1. So answer will come 1. Next is 0 plus 1 0 plus 1 1 will come. 0 plus 1 1 will come. 1 plus 1 again 1 plus 1 means 0 with carry 1. तो आपका ये एडिशन हुआ. नाउ यू नेक्स्ट यू कैन सी द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन यू कैन सी 1 0 1 1 0 1 1 minus 1 0 0 1 0. You have to write down in the solution and start from the last to first. 1 minus 0, it will give 1. 1 minus 1, it will give 0. 0 minus 0, it will give 0. 1 minus 0, it will give 1. 1 minus 1, it will give 0. And next 0 and 1 you have to write down as it is. Now examples is done. We move to the ओके चिल्ड्रंस, आई टेक ए रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. आज हमने क्या क्या देखा. हमने कंप्यूटर में नंबर सिस्टम देखे. हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. उसके बाद हमने डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं, हमने ये देखा. लास्ट वी हैव सीन कंप्यूटर अर्थमेटिक. कंप्यूटर अर्थमेटिक, देयर आर द 4 कंप्यूटर अर्थमेटिक: बाइनरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन. Here we have seen the example of binary addition and the subtraction. In the slides I have given the homework. मैंने slides में आपको homework भी दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपको वो homework अपनी नोटबुक में करना है और उसे learn भी करना है. We will meet next with the chapter 2. तब तक के लिए चिल्ड्रंस, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, टेक केयर. अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा. आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है. जब भी बाहर जाएं आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है. जब वापस आएँ तो आपको अपने हैंड वॉश करने हैं प्रॉपरली. तो चिल्ड्रंस, फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, घरों में रहिएगा. टेक केयर चिल्ड्रंस. बाय बाय. थैंक यू.